Hello and Assalamu alaikum viewers. Today I'm very proud to have one of a fine teacher of mine, uh, a Pakistani researcher who is doing his PhD in USA. He has done master from one of Pakistan premier university, LUMS, and currently is a final year PhD student. I'm very lucky to have him. Today I have Sir Abdurrauf साहब. थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया. कैसे हैं सर आप? Thank you so much, Amir. Very kind of you. Alhamdulillah, I'm very good. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर. तो सर अपनी एजुकेशनल जर्नी शेयर कीजिएगा हमसे. ठीक है. So I'll briefly share my educational journey. मेरी जो है undergraduate, that is from University of Sargodha. And my special मेरी आवाज़ के बारे में बताएगा. Is it clear enough? I need to speak a little louder. Little order maybe. Little louder. Okay. So my undergraduate was from University of Sargodha. I specialized in organic chemistry. And one probably a different thing about my undergraduate experience was that I was always looking for like some different opportunities, like something beyond the university level. And I was lucky enough that I got an opportunity to come to the US during my undergraduate. And I was in my fourth semester when I came here. और यहाँ पर यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट फ्रांसिस थी जहाँ पे मुझे एडमिशन मिला एंड आई गॉट टू नो अबाउट द रिसर्च कल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में उन चीज़ों का। फिर मैं पाकिस्तान वापस गया, उसके बाद मैंने वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की। और देन आई वाज लुकिंग फॉर सो सॉर्ट ऑफ लाइक आफ्टर माय अंडरग्रेजुएट समथिंग आई न्यू इज कि भाई आई वांट टू परस्यू रिसर्च एंड आई वांट टू लर्न मोर एंड एक्वायर मोर नॉलेज। तो आई गॉट एडमिशन इन लम्स। वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है कि आई गॉट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अदरवाइज लम्स इज अ लिटिल मोर ऑन दी हायर एंड एक्सपेंसिव, इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो वहाँ पर फिर मुझे मैंने 2 साल अपनी रिसर्च कंप्लीट की वहाँ पे। डॉक्टर मोहम्मद सईद हैं लम्स में, ही वाज़ माय मेंटर in lumps, or my research was purely focused on organic synthesis. And when I was in my final year of my master's program, I started to apply in different schools for PhD. और उनमें फिर मुझे ऑफर्स आई मल्टीपल काफ़ी जगहों से। और उसमें फिर काफ़ी सोच विचार के बाद आई इवेंचुअली डिसाइडेड टू गो विद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो। प्रॉब्ली एक रीज़न ये थी कि ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट आई वाज हियर इन शिकागो एज वेल। तो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए नोन सिटी था। तो एंड सेकेंडली जो रिसर्च फैकल्टी थी यूआईसी की, दैट वाज़ लाइक वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी। सो आई स्टार्टेड माय पीएचडी इन 2021। अभी मेरा जो है वो 5वां साल शुरू होगा इस 15 दिन बाद। तो लाइक इट्स बीन लाइक अ लॉन्ग जर्नी, इट्स ऑल कमिंग टू एन एंड इन May 2026। तो दिस इज़ if you are interested in any specific aspect about my journey, I can elaborate more on that as well. लेकिन ये एक brief picture। So, one main question is that what motivated you to choose USA rather than Europe or some other countries like Australia or Canada? So, what was the motive behind choosing the US? Mhm. A very good question, and I think a lot of Pakistani students often struggle with this thing, कि मतलब which country to consider for the PhD। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे सर्कल में मेरे अपने क्लास फेलोज ऐसे थे, they were pursuing their either masters or PhD in different parts of the world. I have a very close friend Asad Shehzad. He was doing his PhD, his masters back then in Germany. Now he's doing his PhD in Germany. Back then he was doing his masters in Germany. I have another friend Muhammad Ilyas who was doing his masters in Turkey. So and friends that were doing their masters in Europe as well, and in Australia, in Canada, multiple locations. So उनसे बात होना एक बड़ी common बात थी उस decision making stage पे, like talking with them, getting to know about the research culture, program length, program expectations, job market की क्या situation है, residency को लेके क्या residency से मुराद immigration standpoint से, like what are the situations in that sense. So and I think कि for me it was like a mixture of all these things that I mentioned. I was most definitely looking for a program that is research intensive and research focused, but at the same time, they don't just push you in the research right away. That was a big thing for me. So US जो है, their PhD is 5 years long. They actually allow you to consider to pursue your PhD right after your BS as well. तो ये एक information है, अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट BS के बाद डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, you don't have to have a master's degree. तो US का जो PhD program है, for me it was really nice कि they actually take you in as student, they allow you to take courses, और उसके बाद आप 1 साल के अंदर अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपने किस फील्ड में अपनी रिसर्च परस्यू करनी है फाइनली। तो यू एक्चुअली मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जबकि अगर आप जर्मनी में जाते हो या यूके में जाते हो तो यू हैव टू एनरोल इन द लैब फ्रॉम डे Predefined वन, for एंड देन यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक
किसी स्टेज पे अगर आपको ये रियलाइज होता है कि यार मेरा इंटरेस्ट जो है वो तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा था और मैं ऑर्गेनिक में आ बैठा हूँ, या ऑर्गेनिक में नहीं था, इनऑर्गेनिक में था, तो इट्स समटाइम्स इट्स टू लेट फॉर यू एट दैट स्टेज. तो फॉर मी दैट वाज अ बिग थिंग. एंड देन ऑल्सो लाइक थिंकिंग अबाउट जॉब मार्केट, आई थिंक यूएस की जो इकोनॉमी है दैट हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर लाइक क्वाइट सम टाइम, एंड द जॉब मार्केट इज रियली बिग. यूएस इटसेल्फ इज लाइक यहाँ पे 50 रियासतें हैं, यू कैन फाइंड जॉब समवेयर. दैट वाज अनदर फैक्टर. फिर लैंग्वेज का एक और फैक्टर आता है कि यूरोपियन साइड पे कंट्रीज में जर्मन, फ्रेंच या मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं. एंड आई वाज लाइक थिंकिंग मोर अबाउट कि चलो यूके या यूएस में ये होगा कि कम से कम लैंग्वेज जो है वो मुझे कोई नई ज़बान नहीं सीखनी पड़ेगी. दैट वाज द थिंग. और अपार्ट फ्रॉम लाइक ऑल दीज फैक्टर्स, जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं इंसान के अंदर, देयर इज सॉर्ट ऑफ लाइक बचपन से आपने कुछ ड्रीम्स सोचे होते हैं, चीज़ें देखी होती हैं. तो आई वांट टू से एंड आई वांट टू एडमिट कि बचपन से मेरे माइंड में एक ये था, यूएस के बारे में मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं न्यूज़ पढ़ता था किसी नासा के साइंटिस्ट के बारे में या किसी, तो वो एक पिक्चर आती थी माइंड में यूएस की और उन यूनिवर्सिटीज़ की जो बड़ी हिस्टोरिक यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे. तो एक वो भी एक पर्सनल फैक्टर भी था यूएस को थोड़ा सा वो प्रायोरिटी पे रखने का फॉर पीएचडी. वेरी नाइस सर। तो सर आप पाकिस्तान में सरगोदा यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है, कुछ ना कुछ आपको रिसर्च कल्चर का आइडिया होगा। फिर आपने पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर किया है, वहाँ का रिसर्च कल्चर भी आपने उसको भी ऑब्जर्व किया है 2-3 साल। फिर आप यूएस की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया, ऑलमोस्ट आप फाइनल ईयर में हैं। तो सर व्हाट डू यू फील, व्हाट आर द गुड एंड बैड्स ऑफ बोथ, एंड व्हाट कैन बी डन टू मेक द रिसर्च गुड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तान? आई थिंक रिसर्च का जो मतलब है कि रिसर्च क्या होती है, दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली एट पाकिस्तानी लेवल, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़. आई एम वेरी मच फेमिलियर. पाकिस्तान में एक चीज़ मानी जाती है कि अगर आपके पब्लिकेशंस ज़्यादा हैं तो आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, विच इज़ सच अ रॉन्ग रॉन्ग इम्प्रेशन. कि आई वुड से research is like why you, like if you are doing like organic syntheses or whatever, my first question to you would be like why you care about this, कि मतलब why you want to like research in this area. तो ये चीज़ मुझे लगता है पाकिस्तान में थोड़ी सी मुझे मिसिंग नज़र आई अपने थ्रू आउट एक्सपीरियंस में. मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करूँगा. सरगोदा यूनिवर्सिटी से जैसे आपने जिक्र किया, तो मुझे लगता है माइट भी अब सरगोदा यूनिवर्सिटी में चीज़ें चेंज हो गई हों, लेकिन बैक देन जब मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया, इट वॉज 2019. एट लीस्ट अंटिल 2019, 2018 या 2019, उस वक्त तक अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर द रिसर्च कल्चर वाज नॉन एग्जिस्टेंट. सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बहुत से टीचर्स भी शायद ये देख रहे हो, लेकिन आई लव टू स्टे वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू द पिक्चर, कि वहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती थी. अगर आप ज़बरदस्ती भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे शायद कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हों, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स थे जो आपको अलाउ कर दें शायद उनकी लैब में थोड़ा सा काम करना, लेकिन अदरवाइज वहाँ पे वही बहुत ही ट्रेडिशनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक वहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस करवाया जाता है. कैन यू बिलीव दिस? और इवन मास्टर लेवल पे भी शायद। मास्टर्स लेवल पे करवाया जाता है वहाँ पे. मतलब आपको वो हमारे जो बीएस के जो फाइनल ईयर्स थे, जो फाइनल ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपकी एंड ऑफ द बीएस होता है, वहाँ पे आपको जो बनवाई जा रही है, शिफ्ट बेस बनवाई जा रही है आपसे, वहाँ पे आपको जो है वो एजोडाइज बनवाई मतलब टेक्निकली वो जो वहाँ पे लैब्स करवाई जा रही हैं वो आज से 20-30 साल पहले रूल आउट हो चुकी है. मतलब वो तो आपको शायद बीएस के पहले सेमेस्टर में करवा देनी चाहिए. और एक मतलब रिसर्च उन्हें उसे आप नहीं कह सकते. और वो जो रिसर्च इंक्वायरी होती है या जो रिसर्च एक माइंडसेट होता है, पेपर को पढ़ना, उसमें से क्वेश्चंस निकालना, उसको फिर ये बच्चों को डिलीवर करना कि लाइक व्हाई, यू नो, व्हाई वी सॉर्ट ऑफ लाइक व्हाई एंड हाउ वी फ्रेम अ प्रॉब्लम एंड देन हाउ वी सॉर्ट ऑफ लाइक डू द लिटरेचर सर्च to identify existing solutions and customize those solutions to our problem. Like that thing was non-existent. I'm very lucky that I got into LUMS क्योंकि वहाँ का जो research culture है that is way stronger, way better than Sargodha University. They are like they actually make you think like you are scientists. There are like, I understand like there are a lot of like funding and uh, mainly funding benefits to LUMS. That is a private institution. They have like a lot of equipment that University of Sargodha might not have. Like it's sometimes it's more about inculcating that culture. Yeah, It's exactly. It so is not always about the instrument, it is yeah. about the literature survey and understanding what research in fact is. True. It's a lot of times it is about that. So in LUMS, from the day one, I remember that they were enrolling us in courses. We had to. I remember my very first lab there was to design, actually synthesize acetaminophen. तो वो एक माइंड में अच्छा हम ये बचपन से हम ये खा रहे हैं गोली acetaminophen की, अब हम उसे लैब में बना रहे हैं. तो that feeling of like doing it and then knowing that you just made this small molecule and now this molecule is going to interfere with the human pathology. This is a big feeling, I would say. So that thing sort of like intrigued me to pursue my research career even more. So LUMS was definitely that.
एंड व्हेन आई कंपेयर दैट टू द यूएस रिसर्च कल्चर, सो दैट इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पर जो बीएस लेवल से, या हमारी अभी जो मेरी रिसर्च लैब है यहाँ पे, हमारे पास बीएस के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। लाइक शुरू से ही बच्चों को उसमें लगाया जाता है कि लाइक यू हैव टू थिंक साइंटिफिकली, यू हैव टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एंड कम अप विद द प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, डिस्कस विद योर peers, discuss with the professors, So all that. the problem statement for PhD is not predefined. It is the researcher who has come up with the idea. Yes, a short answer would be yes. Right. This is some, at least is a good part. You can play with your own mind and with your own skills. That's Yeah. great. So, what suggestion you would be giving to the researcher back in Pakistan or wherever they are, especially those are starting their career, their research career, a new PhD student, what they can do to kick off their PhDs? I would say any day, I would say read more papers, do more literature review, do more literature search. Never just, क्योंकि जब तक आप पेपर्स नहीं पढ़ते, जब तक आप डाइव इन नहीं करते हो, you would never be able to know कि where your actual interest lies. You might think कि ऑर्गेनिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, शायद आपने एनएमआर पढ़ी हो, आपको मजे की लगी हो, या आपने मैकेनिज्म, आपको SN1 SN2 की समझ आ गई हो, तो आपको लगे ऑर्गेनिक बड़ी, ऐसा नहीं है। When you spend time in reading literature, and when you spend time in understanding what is happening in the field, what are the core problems right now, what scientists are doing, blah blah blah, like those kind of things, it is at that stage when you realize कि okay, मेरा दिमाग इस चीज में चल रहा है, मेरा दिमाग इस चीज का सोल्यूशन मुझे ज्यादा दे रहा है। तो आई वुड सजेस्ट जो भी पीएचडी को यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, माई सिंसियरेस्ट एडवाइस टू एवरी वन वुड बी रीड मोर लिटरेचर। आजकल तो चैट जीपीटी और ये क्या नाम है दूसरा, ये को पायलट और ये सब, लाइक बहुत सारे एआईज आ चुके हैं, तो यूज देम। अपलोड अ पेपर ऑन चैट जीपीटी और को पायलट और वटेवर, और पुट एन एक्सर्ट ऑफ द पेपर, टेक, क्योंकि हमारे दौर में जब मैंने मेरी इवन पीएचडी के दरमियान तक भी देयर वाज नो एआई आउट देयर लाइक दिस। तो हमें तो पूरा पेपर खुद ही उसको पढ़ना पड़ता था, लाइब्रेरीज में टाइम जाएं, स्पेंड करें, बुक्स खोलें, प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस करें, फ्रेंड्स बहुत बड़ा एक आपका एसेट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, उस चीज को समझें। तो वी यूज टू डू दैट। अब आप खुद ही से ये सब कुछ कर सकते हैं, लाइक टेक अ पेपर, नहीं समझ आ रही है कुछ भी, उसको चैट जीपीटी से पूछे, कहीं से उसको समझने की कोशिश करें। उसके तो क्वेश्चन आंसर करें पेपर देकर। एग्जैक्टली। तो द मोर यू रीड, एक्सक्यूज मी, द मोर यू रीड, द बेटर यू अंडरस्टैंड या कि आप करने क्या जा रहे हो। ये बिल्कुल इतनी सिंपल सी बात है। तो दैट वुड बी माय फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस। सर, मैंने एक दफा आपसे पूछा था और मैं बड़ा इस चीज़ से इम्प्रेस भी हुआ था। आपने मुझे बताया था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और फिर मेरी लाइफ शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसी टिप्स देंगे, मतलब अपनी रूटीन शेयर करना चाहेंगे आपकी आपकी रूटीन कैसी रही है पीएचडी जर्नी में? और एक है तो ये पर्सनल क्वेश्चंस, कितने पेपर एक वीक में एक पीएचडी स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, स्पेशली जो स्टार्ट ले रहे हैं? क्योंकि जब आप 2-3 साल स्पेंड कर लेते हैं तो फील्ड आपको ऑलमोस्ट समझ आ जाता है। तो स्टार्ट का जो पीरियड है उसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं? एक हफ्ते में 3-4, 2-3 कितने पेपर? और थोड़ा सा रूटीन मैटर भी। हम्म। सो फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन है अबाउट कि 4 बजे जागने वाला या 4 बजे के बाद दिन स्टार्ट करने वाला, दैट इज, आई वुड से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि लम्स में मैंने ये चीज़ सीखी और पीएचडी ने मेरे में ये चीज़ लाइफ का पार्ट बना दिया, दैट वाज डिसिप्लिन। Yeah. एंड आई कैन से इट विद utmost सर्टेनिटी कि आप चाहे पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर यू इन योर लाइफ इज डिसिप्लिन। Yeah. So, PhD में, of course, there's a lot of, especially if you talk about in the US, US, culture, there's a lot of stress. You have to TA. TA means like teaching assistantship करनी पड़ती है, research assistantship करनी पड़ती है. Like you have a lot of that stress. So I would say, with that stress, if you're not disciplined and you do not have a schedule, things will be very messed up. तो मैंने उसके अंदर काफी आप चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, माइट भी आप 4 बजे शाम को उठें तो आपके लिए दिन बेहतर हो। तो आई वुडंट रिकमेंड टू एवरीवन कि भी आप सुबह 4 बजे उठ जाए, बट आई वुड से इसके गेट टू नो व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। हर एक का दिमाग डिफरेंट काम करता है। मेरे लिए 4 बजे उठने का, मेरी एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि मेरा जो पूरा दिन का मैप होता है, आई प्रिंट इट आउट। मेरे पास सिस्टम यहाँ पे नहीं पड़ा, माइट भी मेरे क्योंकि मैं वो अपने नोट्स में से प्रिंट करता हूँ अपने फोन में, तो आई कैन प्रॉब्ली शो यू हियर। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, माइट भी कैमरा में, लेट मी ट्राई, नहीं कैमरा में नजर नहीं आ, माइट भी आपको लिस्ट इस तरह साइड पे नजर आ रही हो। तो मेरी एक ना टू डू लिस्ट होती है, लाइक आई ब्रेक डाउन माई टास्क इनटू, मेरी ये पीएचडी के टास्क हैं, ये मेरी टीएशिप के टास्क हैं, ये आरएशिप के टास्क हैं, ये पर्सनल लाइफ के टास्क हैं, किसी और मतलब इशू पे मैं उस वक्त में इमिग्रेशन मैटर्स पे मैं काम कर रहा हूँ तो ये मेरी इमिग्रेशन इशू के काम है। ये मेरी जो है वो घर की मेंटेनेंस के काम है, मतलब पूरी मैं लिस्ट बनाता हूँ। एंड देन आई फिजिकली प्रिंट इट आउट, एंड देन फिजिकली जो जो करता जाता हूँ मैं उसको कट करता जाता हूँ कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
तो दैट हेल्प्स। तो वो 4 बजे उठने वाली चीज़ें वो इस तरह से हुई कि मल्टीपल ट्रायल्स के किसी दिन इतने बजे उठे, इतने इतने बजे उठे, चीज़ों को लेके चले, और फिर पता चला कि यार मेरे लिए ये वर्क डिफरेंटली। सो गेट टू नो लाइक व्हाट आर द बेस्ट टाइमिंग्स फॉर यू। लेकिन हैव सम डेडिकेटेड आवर्स फॉर योर पीएचडी, एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे मिनिमम, बेयर मिनिमम, जो कि आप प्लान करें, जिसके अंदर आपने अपने पेपर्स पढ़ने हैं या रिसर्च कंडक्ट करनी है, राइटिंग्स वगैरह करनी है। और टू योर क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी पेपर्स वन शुड रीड, दैट इज ऑल्सो वेरी sort of like fluid sort of like thing. Um, Normally, I don't know how to answer this question like with accuracy. I can share how much I read, like, and it could be different for someone else, and they might be doing just fine. मेरे केस में ये होता है कि normally um about like about like 10 to 14 papers a week is been my average, क्योंकि इट्स अबाउट या अबाउट ये होता है कि डेली एटलीस्ट डेली बेसिस पे जो मेरा काम चल रहा होता है उसमें कम से कम 2 से 3 पेपर, इसलिए मैंने आपको एवरेज में 14 बताया। कुड बी अ लिटिल बिट मोर देन दैट, कुड बी लिटिल बिट लेस देन दैट, लेकिन ऑन एवरेज इट वुड बी 14, क्योंकि बल्कि अगर हम 5 डेज के वीक की बात करें तो द एवरेज विल गो डाउन। आई वुड से लाइक अबाउट 10 पेपर्स अ वीक वुड बी अ गुड एवरेज टू से। लेकिन अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूँ तो 2 से 3 पेपर जो हैं वो गो थ्रू करने पड़ते हैं टू कीप अप योर नॉलेज। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप एसीएस के मेंबर हो या डिफरेंट जर्नल्स के अगर आप मेंबर हो, तो दे सेंड यू एन ईमेल इन द मॉर्निंग और सजेस्टेड रीडिंग एवरी डे, दे सेंड यू दैट। तो यूजुअली दैट्स वेरी एक्यूरेट। वो आपसे आपका इंटरेस्ट पूछते हैं, उसके मुताबिक ही वो आपको सजेशंस भेजते हैं डेली बेसिस पे। तो आई गो थ्रू दोज पेपर्स ऑलवेज, नो डाउट, दैट हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल। कि आप डेली वो 2-3 पेपर्स आपको बता देते हैं कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट या आपके जो रिसर्च है उससे मोस्ट रेलिवेंट 2-3 पेपर्स कौन से हैं। फिर यू हैव टू कीप अप विद द पब्लिकेशंस इन द फील्ड। जैसे मैं अभी केमिस्ट्री एजुकेशन रिसर्च में काम कर रहा हूँ तो देयर आर सम प्रोमिनेंट रिसर्चर्स इन दिस एरिया। उनके रिसर्च ग्रुप से क्या निकल के आ रहा है, उसको उसके साथ कीप अप रखना। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे केमेड रिसर्चर्स हैं, या कनाडा में, जर्मनी में, तो उसके साथ कीप अप रखना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पीएचडी स्टूडेंट यू शुड नो कि लेटेस्ट क्या जो है वो एडवांसमेंट्स हो रही हैं आपकी फील्ड में। और बाय फील्ड आई डोंट मीन पूरी केमिस्ट्री का आपको बताओ, वेरी स्पेसिफिक नीश जो आपकी है उसमें क्या हो रहा है। तो मे बी मैं किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ और उस पर पेपर ऑलरेडी आ गया 2 दिन पहले और मुझे पता ही ना हो उसका, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो इसलिए स्किम थ्रू करें या पूरा पेपर पढ़ें, डू वट एवर, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 पेपर ऑन अ डे is what's going to keep the stress away from a PhD student in a longer run. You'll be very well informed eventually. तो सर आपने एआई का जिक्र किया अपनी पिछली बात में। तो सम टाइम बहुत सारी जो है वो इस पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि एआई का मिसयूज हो रहा है। तो पर्सनली मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगा है एआई, स्पेशली जब आप पीएचडी स्टार्ट करते हैं और आपको ज़्यादा नो हो नहीं होती अपने टॉपिक की। तो बड़ा ही हेल्पफुल रहता है पेपर्स को एक्सप्लेन करने में, बेसिक से लेकर कम्प्लेक्स क्वेश्चन को हल करने में, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। तो आपके ख्याल में, आपकी ज़ाती राय में, वो कौन सी रेड लाइन है जहाँ पे रिसर्चर को एआई का जो है वो मिस यूज की तरफ वो खुद को पुश कर लेता है? देखिए, मिसयूज किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा ही हो सकता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। तो हम्म। आप अगर एआई यूज़ कर रहे हैं तो एक्नॉलेज दैट इन योर राइटिंग्स, एक्नॉलेज दैट इन योर पेपर्स और डिसर्टेशन और मैन्यूस्क्रिप्ट और वट एवर, यू यूज्ड एआई फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस और मेकिंग योर राइटिंग मोर स्मूथ। तो एक तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी एआई को यूज़ करते हैं, डिक्लेयर दैट इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स लाइक जस्ट लाइक एन एडिशनल टूल। इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, एंड इफ यू आर रिलाइंग ऑन एआई टू स्मूदन आउट योर राइटिंग या फिक्स योर ग्रामेटिकल एरर्स, दैट इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। तो वो एक तो ये चीज़ मैंने देखी है, फ्रीक्वेंटली लोग एक्नॉलेज नहीं करते, तो आई वुड मेंशन दैट इन द बिगिनिंग। सेकंडली, आई पर्सनली ऑलवेज फाउंड एआई वेरी हेल्पफुल एज वेल, बट यू हैव टू कीप योर आइज ओपन। कभी कभी इट कुड बी अ लिटिल बिट मिसलीडिंग। और एक अभी तो खैर जो उसके नए मॉडल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी आई थिंक 5.2 इज द लेटेस्ट वन, दैट इज वेरी वेल एडवांस्ड। लेकिन इनिशियली चैट जीपीटी यूज टू गिव यू रॉन्ग साइटेशंस, रॉन्ग, कभी कभी वो पेपर इन्वेंट कर लेता था ये पेपर, हालांकि वो पेपर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यू हैव टू बी केयरफुल। You cannot just blindly trust whatever AI is saying. Double check that information for, और इवन वो डिस्क्लेमर उस पर भी आ रहा होता है चैट जीपीटी पे कि फैक्चुअल एक्यूरेसी आप खुद चेक कर लें। तो डू दैट। लेकिन टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू मेक कनेक्शंस, इट हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल फॉर मी। बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट भी ना हो आप एआई पे। अपने जो आपका थॉट प्रोसेस है, कीप इट देयर। एक्चुअली पुट योर थॉट प्रोसेस फर्स्ट, उसके बाद आप एआई पे चले जाएं। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट ही एआई से करो, मतलब एक पेपर आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आप समझो कि इसको तो मैं समझ आ ही नहीं सकता एआई के बगैर, आप डायरेक्ट यूज एआई पे, that could be a little bit in a longer run could be a little bit damaging. Lekin keeping AI as a companion is fine. It's just like you are reading a paper with a friend of yours. So use AI, just do like a careful use of AI.
That is what I would say. एक और चीज जो मैंने यूएस पीएचडी के बारे में सुनी है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, आमतौर सर यही है कि पीएचडी जो है यूएस की वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे जो पीएचडी का जो रिसर्च इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा टॉक्सिक है, या जो कोर्स वर्क है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है कुछ स्टूडेंट के लिए पास करना, स्पेशली व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम बिट वीकर बैकग्राउंड। तो आपको कैसा लगा है रिसर्च इन्वायरमेंट यूएस का? उनको कमेंट करना चाहें इस पे? Toxic environment तो कहीं पे भी हो सकता है. It could be in Pakistan, it could be in any part of the world. That is something that a professor, that's why I would say when you are about to join a research group, do your research about the group's culture. Toxicity तो कहीं पर भी हो सकती है. तो I cannot, sort of like rule out that for the US, or I cannot say that as a fact कि अच्छा होता है यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है. जहाँ तक बात है कि academic culture कैसा है, तो for sure they have a very heavy focus on your conceptual या cognitive basis. So they जैसे ही आपकी PhD स्टार्ट होती है, like at least at UIC, University of Illinois Chicago, मेरा जो पहला दूसरा यहाँ पे PhD का दिन था, अभी ऑफिशियल सेमेस्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमें एंट्रेंस एग्जाम देने थे. तो आपको 5 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 5 में से 3 आपको क्लियर करने होते हैं. अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाते हो तो यू कैन नॉट कंटिन्यू. तो एक वो बहुत बड़ा स्टार्टिंग इवन पीएचडी एंड कोर्स बिफोर वर्क। स्टार्टिंग, लाइक आप मैं यहाँ पर 1 अगस्त को पहुंचा था, और 15 अगस्त को मेरे वो एंट्रेंस एग्जाम थे. 5 होते हैं, 5 में से 3 आपको लाजमी क्लियर करने पड़ते हैं. और उसके ऊपर ये होता है, अगर आप 3 क्लियर नहीं कर पाते हो तो दे इशू यू अ वार्निंग, एंड यू कैन रीटेक दोज एग्जाम्स बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर. एंड इफ यू स्टिल कैन नॉट क्लियर, देन यू हैव टू लीव द प्रोग्राम. तो ये इस तरह से होता है. लेकिन वो जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, दे आर नॉट डिफाइंड. उसमें ये नहीं होता है कि मतलब 5 होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो, केम, एनालिटिकल. लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आपको बताया जाएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ये बुक है या ये टेक्निक. वो जनरल होता है. लाइक आपने पूरी जिंदगी ऑर्गेनिक पढ़ी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. होते हैं ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस हैं वो. लेकिन या in my opinion, everybody sort of like clears that, because you know that this is a requirement and everybody is preparing for that as they're coming to the US. So that's like one thing. Most of the students clear that. So that is the first big check on you. Then you have to enroll in courses, and the grading system is like way more difficult than it is in Pakistan. यहाँ पर बड़े strict cut-offs होते हैं, and it's यहाँ पर अपने बी तक मेंटेन रखना भी बड़ा चैलेंज हो जाता है कभी कभी. उसके बाद you have to do a comprehensive exam. So comprehensive exam is due at the end of your first year. सो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेसर्स फॉर अ पीएचडी स्टूडेंट प्रॉबेबली. कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम जो होता है, दैट इज योर फील्ड स्पेसिफिक. एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि आपका ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक या फिजिकल, जिसमें आप जो आपका मेजर है उसी में से होगा वो. लेकिन दैट कुड बी वेरी लॉन्ग, वेरी स्ट्रेसफुल एग्जाम. और कॉम्प्रिहेंसिव का भी कोई सिलेबस नहीं होता है. दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन. दे कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम grade 5. They can ask a question from the first semester of your BS, from first semester of your masters, or from first semester of your PhD. So generally कुछ भी हो सकता है. So comprehensive is the second stressor. थर्ड जो स्ट्रेसर आता है सेकंड ईयर के आपके एंड के ऊपर, यू हैव टू क्लियर एन एग्जाम कॉल्ड प्रीलिम और प्रीलिमिनरी एग्जाम. सो प्रीलिम और प्रीलिमिनरी का मतलब ये होता है कि यू हैव टू डिफेंड योर रिसर्च वट एवर यू हैव डन इन फर्स्ट 2 years इन फ्रंट ऑफ अ बिग कमेटी. सो 5 लोगों की कमेटी होती है, और वो बैठते हैं और वो आपको सुनते हैं, और आपसे आपकी रिसर्च के बारे में कि आपने पूरे 2 साल क्या किया है. और अगर वो फील करें कि यू हैव डन enough of the work, and you have made a significant progress, they approve you. And if they do not approve you, then you have to leave the program at the end of second year. So it's like, again, another sort of like check on your research. So in that sense, it's a little bit stressful. So you have to come up with your own research proposal, or it is predefined? Most of the times, again, it's up to the professor. Sometimes professor has a proposal for you, and then they can engage you in that work. And sometimes you have to come up with your own research. In my case, I had to design my own research project. All right. So I think we need to enter into the second phase of this sitting, and now we can talk about